So students, we have already covered the topic electrode potential, and we have seen that tendency to lose or gain electron is called electrode potential for that particular electrode, right? कोई भी इलेक्ट्रोड अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, राइट? और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स, राइट? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट इन प्रीवियस टॉपिक. So the electrode which lose electrode जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड इलेक्ट्रोड विच गेन इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? सो ऑन दैट कॉन्सेप्ट वी आर मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल potential. So students, let's deal with this topic. It's very simple. You know that in galvanic cell, two type of electrode potential are there, right? Over here on left hand side we can see the oxidative electrode potential, and on right hand side we observe reductive electrode potential, राइट? हमें लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस मिलती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिलता है, एंड राइट हैंड साइड पे रिडक्शन रिएक्शन मिलता है. सो यू कैन सी दैट ओवर हियर ऑक्सीडेशन, ओवर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई ऑक्सीडेशन, एंड ओवर हियर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ई रिडक्शन. सो दीज बोथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर डिफरेंस, these both electrode potential are different, right? Because of the difference in electrode potential, current will be generated. You know that this electrode, that is cathode, have electrode potential higher in compared to the oxidative electrode potential. It means we can say that oxidative electrode potential is lower in compared to the reductive electrode potential. Let me repeat it once again. जब हम गैल्वेनिक सेल देखते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और राइट हैंड साइड पे रिडक्शन होता है, राइट? तो हम ये बोल सकते हैं कि इस यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो इलेक्ट्रोड है उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट्स वाई वी कैन रिप्रेजेंट इट एज ई ऑक्स. मतलब व्हाट डज इट मीन? Electrode potential of oxidation, right? And over here electrode potential of reduction reaction. It means this is the electrode potential of left hand side electrode, and this is the electrode potential of right hand side electrode. On left hand side oxidation हो रहा है, right hand side पे reduction हो रहा है. ओके, नाउ जब आपको पता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा. सो स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है और ऑक्सीडेशन का हमेशा लो होता है, राइट? बिकॉज ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हाट विल हैपन? करंट विल बी generated. Because of the electrode potential difference, current will be generated, and electric current will always move from higher potential to lower potential. So electric current, we can say that electric current will always move from higher potential to lower potential. You know that higher potential is at cathode. We have seen here that higher potential कहाँ पर है? कैथोड पे है, and lower potential कहाँ पर है? एनोड पे है. So current will always flow from cathode to anode. Current will always flow from cathode to anode. Okay, and here we can say that because current कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड. दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट? सो करंट कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है, एंड एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. So it's very simple. Because of the electrode potential difference between these two electrodes, because of the electrode potential difference, current will be
generated and it will flow from higher potential to the lower potential. It means we can say that current will flow from cathode to anode. And if current is flowing from cathode to anode, it means इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, एनोड से कैथोड की तरफ. और बच्चों अगर आपको याद हो तो वी हैव सीन दैट in galvanic cell we have taken two beaker in which electrolyte was there, and in this electrode was dipped, right? दिस इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड हमने एनोड की तरफ लिया था और ये इलेक्ट्रोड हमने कैथोड की तरफ लिया था. एंड जब हम इसको कनेक्ट करते हैं और हम यहाँ पे कोई भी वोल्ट मीटर या अमीटर कनेक्ट कर देते हैं टू मेजर दी पोटेंशियल और करंट, राइट? तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे थे एंड दे विल मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड. इट मीन्स कैथोड क्या कर रहा था, उसको इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा था. सो ये वी कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स द कैथोड, राइट? कैथोड, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं. यहाँ पे हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं. ओके, so this is the concept behind electromotive force, or this is also known as cell potential. So in simple words we can say that electromotive force is a difference between the electrode potential of two constituting of electrochemical cell. Okay, so in simple words we can say that electromotive force is difference in potential of, it is a difference in potential of the two half cell of the two half cell. ओके, दो हाफ सेल के बीच में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज सेल potential. Okay, so this is the simple definition which you can use, and I have already told you that electrode potential कैसे vary करता है, because you know that on left hand side electrode potential oxidation का है, right hand side electrode potential reduction का. it means चेंजेस हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, तो बट ऑब्वियस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वेरी करेगा. ये हमेशा हायर अमाउंट में होता है, ये लोअर में होता है, तो करंट हमेशा हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में. दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड जस्ट अ फ्यू मिनट्स बिफोर, राइट? सो दिस इज द डेफिनेशन. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिफरेंस इन पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स. सिंपल. So let us now see how we can calculate electromotive force or cell potential. So student, just keep in mind first point. अगर हम एनोड को, if we take anode as oxidative potential, if we take एनोड as oxidation potential, अगर हम एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही ले रहे हैं, ठीक है, हम इसे चेंज नहीं कर रहे. व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि न्यू कन्वेंशन के हिसाब से, प्रेजेंट कन्वेंशन के हिसाब से वी यूज टू टेक रिडक्शन पोटेंशियल, नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है. लेकिन अभी हम एक बार के लिए ये कंसीडर कर रहे हैं कि हम एनोड का ऑक्सीडेशन ही ले रहे हैं, हम उसको रिडक्शन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है. और सेकेंड, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो हम कैथोड का कौन सा पोटेंशियल ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल. ओके, सो इट्स वेरी सिंपल. अगर आपको EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E ऑफ द सेल, और यहाँ पे नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, वी आर टेकिंग स्टैंडर्ड कंडीशन, राइट? तो जब हमको EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है तो इट्स वेरी सिंपल. आप क्या करेंगे, E ऑक्सीडेशन, मतलब हम इसको लिख सकते हैं E ऑक्सीडेशन, राइट, और इसको हम लिख सकते हैं E रिडक्शन. तो आप क्या करेंगे, E ऑक्सीडेशन प्लस कर देंगे E रिडक्शन किए, तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड का है और जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का, उन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको सेल का EMF मिल जाएगा. ओके, सिंपल. नाउ सी व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि प्रेजेंट कन्वेंशन के हिसाब से व्हाट वी हैव टू डू, प्रेजेंट कन्वेंशन के हिसाब से
वी हैव टू टेक रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेटिव भी है तो आप उसको रिडक्टिव में कन्वर्ट कर दीजिए, राइट। तो अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एनोड का भी हम क्या ले रहे हैं, रिडक्टिव और रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता ऑक्सीडेशन है, बट अगर हम रिडक्टिव लेते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रिडक्टिव पोटेंशियल। और अगर कैथोड का वापस से क्या हो जाएगा, कैथोड का तो रिडक्टिव ही है, तो ये एज इट इज ही रहेगा, देयर विल बी नो चेंज इन दिस। ओके, सो रिडक्शन पोटेंशियल। नाउ कीप इन माइंड स्टूडेंट्स, अगर ऑक्सीडेटिव प्लस का है, अगर ऑक्सीडेटिव सपोज प्लस का है, तो रिडक्टिव के केस में वो माइनस हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेटिव की वैल्यू प्लस की है तो रिडक्टिव में वो माइनस की हो जाएगी। बहुत छोटा सा रूल है, आपको समझना है कि अगर आपको कोई भी चीज़ ऑक्सीडेटिव में है उसको रिडक्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी सेम, वैल्यू विल बी सेम। जो भी पोटेंशियल की वैल्यू है वो तो रहेगी सेम, बट साइन क्या हो जाएगा, चेंज। साइन क्या हो जाएगा, चेंज। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल कोट करती हूँ। मान लीजिए कि ई ऑक्सीडेटिव किसी भी वैल्यू का है +x वोल्ट, ठीक है, ये इसका पोटेंशियल है मान लीजिए। अगर मुझे उसको ई रिडक्टिव में कन्वर्ट करना है तो मुझे x को तो एज इट इज ही रखेंगे, पर हम इस प्लस की जगह क्या कर देंगे, हम इस प्लस की जगह कर देंगे माइनस। तो सिर्फ आपको साइन में चेंजेस करने हैं, वैल्यू में चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, रिडक्टिव पोटेंशियल लिया है ऑक्सीडेशन की जगह, तो सिर्फ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल स्टैंडर्ड कंडीशन पे, राइट, यहाँ पे ऑक्सीडेशन अब क्या हो जाएगा, रिडक्शन में कन्वर्ट हो गया है, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, तो हो जाएगा ई रिडक्शन, क्योंकि ये अब माइनस में हो गया है, प्लस जो ई रिडक्शन था वो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ उसको, ई रिडक्शन माइनस ई, आई विल यूज ग्रीन पेन टू शो दिस, बिकॉज हमें पता होना चाहिए हम किसको चेंज कर रहे हैं, ई रिडक्शन, ठीक है। अब आपको पता है बच्चों ये किसका है, ये एनोड का है, हमने ये एनोड के लिए चेंज किया है, हमने एनोड के लिए ऑक्सीडेशन लिया था, राइट, एनोड के लिए हमने ऑक्सीडेशन लिया था, अब यहाँ पे एनोड के लिए हम क्या ले रहे हैं, रिडक्शन। इसलिए ऑक्सीडेशन प्लस का था, ये माइनस में हो चुका है, ठीक है, तो माइनस का होते ही रिडक्शन में कन्वर्ट हो गया है। तो आपको क्या करना है, मैं इसको सिर्फ रीअरेंज कर रही हूँ, ई रिडक्शन माइनस ई रिडक्शन। अब ये किसका है, मैं इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझाऊं तो हम ये बता सकते हैं कि रिडक्शन कहाँ पे हो रहा था, कैथोड पे, तो ये क्या है हमारे पास में, ये ब्लैक वाला जो है ये कैथोड के लिए है, राइट, और ये जो ई हमने ग्रीन कलर से लिखा है ये किसके लिए था, एनोड के लिए, तो ये किसके लिए है, एनोड के लिए। तो आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कैथोड का है उसको माइनस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड से, राइट। बट इस केस में जो हम एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं वो रिडक्टिव केस ले रहे हैं, रिडक्शन वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव लिया था, इसका मतलब हम ऑक्सीडेटिव ही ले रहे थे, हमने कोई चेंजेस नहीं किया, एज इट इज जो है उसको समअप कर दीजिए, ऑक्सीडेटिव को रिडक्टिव से समअप कर दीजिए, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल से समअप कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमने कहा है कि हमें प्रेजेंट कन्वेंशन के हिसाब से रिडक्शन में ही लेना है। अगर ऑक्सीडेटिव तो उसको रिडक्टिव में कन्वर्ट कर दो, ये ऑक्सीडेटिव था तो हमने इसको रिडक्टिव में कन्वर्ट किया, तो हमने इसको माइनस में कर दिया है, वैल्यू सेम रखी, तो ये क्या हो जाएगा, ई जो ऑक्सीडेशन है माइनस ई रिडक्शन का हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है ई रिडक्शन में किसके लिए लिया था, हमने ये लिया था एनोड के लिए, एनोड के लिए हमने चेंज किया है, कैथोड के लिए तो जो जैसा था वैसा ही है, तो मैंने ई कैथोड एज इट इज लिख दिया है यहाँ पे, और जो ई रिडक्शन है जो एनोड के लिए वो माइनस का ई एनोड यहाँ कर दिया। तो फाइनली हम इस फॉर्मूले को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, सी इस फॉर्मूले को हम फाइनली ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, देखिए आप, आई एम मेकिंग सम स्पेस फॉर, सो फाइनली आप इसको कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, वेरी सिंपल, देखिए ई सेल इज इक्वल्स टू, आप यहाँ लिख सकते हैं ई सेल, ई नॉट सेल मतलब EMF ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर एनोड। बस
केस क्या है इन दोनों केस में, जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले रहे हैं कैथोड और एनोड के लिए, क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। अगर रिडक्शन पोटेंशियल होगा तब जाके ये माइनस का होगा, ठीक है। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए एक और फॉर्मूला, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट, right, and here you can write as left, you can write over here right minus E naught of left, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं E naught, मतलब E naught cell is equals to E higher माइनस ई लोअर। देखो बच्चों, ये तीन फॉर्मूले हैं, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे तो क्या कर रखा है मैंने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का माइनस किया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड से। बस हमने दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से केस में लिए, रिडक्टिव केस में लिए, जस्ट कीप इन माइंड। आप जानते हो कैथोड अगर गैल्वेनिक सेल में कौन सी साइड में होता है, राइट हैंड साइड में, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट लिखा है। कोई नया कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कैथोड की जगह राइट लिखा है क्योंकि कैथोड राइट हैंड साइड पे होता है और एनोड लेफ्ट हैंड साइड में होता है। हमने ट्रिक पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो, लोन, LOAN, लेफ्ट साइड में क्या होता है, एनोड होता है, इसके लिए मैंने लेफ्ट साइड की, एनोड की जगह मैंने क्या लिख दिया है यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और आप जानते हो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का होता है हमेशा हायर होता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की स्टार्टिंग में, राइट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का हायर होता है और एनोड का लोअर होता है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, हायर माइनस लोअर कर सकते हैं। सो अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, सीधा ही अगर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करें, तो अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन में दे रखे हैं, मतलब दोनों ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों हाफ सेल के रिडक्शन पोटेंशियल, आई एम रिपीटिंग, दोनों हाफ सेल, दोनों जो हाफ सेल है कैथोड और एनोड, दोनों हाफ सेल के अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में दे रखा है, इफ इट इज गिवन इन रिडक्शन पोटेंशियल, देन आपको क्या करना है, आपको बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। आपको क्या करना है, अगर दोनों ही रिडक्शन के केस में दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ई सेल और जो हायर वैल्यू है उसको माइनस करना है लोअर वैल्यू से, और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, फाइनल पोटेंशियल ऑफ द सेल मिल जाएगा। आपको हायर माइनस लोअर करना और कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको कोई ऑक्सीडेटिव दे रखा है तो उसको रिडक्टिव में कन्वर्ट कर दो, मैंने आपको बहुत सिंपल बता रखा है कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं रिडक्टिव के अंदर। अगर ऑक्सीडेटिव दे रखा है उसको अगर रिडक्टिव में कन्वर्ट करना, अगर ऑक्सीडेटिव की प्लस एक्स वैल्यू है तो रिडक्टिव में वैल्यू तो एक्स ही रहेगी बट साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीडेटिव में दे रखी है तो आपको ईजिली उसको रिडक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू रिवर्स दी साइन, ठीक है। आपको वैल्यूज को चेंज नहीं करना है, आपको सिर्फ साइन रिवर्स करना है, फिर क्या करना है, हायर माइनस लोअर। तो just keep in mind, always you have to use reduction potential if you want to use this formula। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, रिडक्शन में कन्वर्ट करो, हायर को लोअर में कन्वर्ट कर दो, हायर को लोअर से माइनस कर दो, दैट्स इट। ओके, सो इन दिस वे you can easily find out the electrode potential of the cell। Let's now deal with the difference between electromotive force and potential difference। So there is a difference between EMF and potential difference, right? So student, the potential difference is the difference between the electrode potential of two electrodes of the cell under any condition, okay? So, and if we talk about EMF, then EMF is a potential generated by a cell when there is zero electron flow। So we can say that EMF of the cell is the potential difference which is generated when no electron is flowing। EMF of the cell is generated when no current is flowing, no electrons are flowing through that particular circuit. It means cell is in standby mode, right? So a potential difference will be developed when cell is under functioning। So EMF is generated when cell is not under function and potential difference is generated when cell is under function। So in simple words we can say that potential difference which is developed between the two electrode,
potential difference which is developed between the two electrode when no electrons are flowing, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा है, एंड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है बिटवीन दी टू हाफ सेल्स उसको हम EMF बोलते हैं, राइट. एंड पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेवलप्ड बिटवीन दी टू हाफ सेल्स व्हेन सेल इज अंडर ऑपरेशन, जब सेल वर्क कर रहा है उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है उसको, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, जब सेल वर्क नहीं कर रहा है, नो इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, नो करंट इज फ्लोइंग, एंड व्हेन करंट इज फ्लोइंग और व्हेन इलेक्ट्रॉन इज अंडर ऑपरेशन, तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. और जब जीरो करंट फ्लो होता है तब EMF हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को. Okay, so here 3 points are given. Let's see each point. See, clearly it is written over here that potential difference between electrodes when no current is flowing in the circuit, when no current is flowing in the circuit, or you can say that is it draws no current, it draws नो करंट. जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं हो रहे, उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में उसको हम EMF बोलते हैं, राइट. सो इस समय सेल वर्क नहीं कर रहा, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स डेवलप व्हेन सेल इज अंडर ऑपरेशन, सेल फंक्शन कर रहा है, उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, so no functioning, functioning, simple. Now the second point is EMF में क्या होता है, in EMF it draws the maximum voltage. So EMF it is the maximum voltage which a cell can deliver. कितना सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल जो सेल हमें दे सकता है वो हम EMF की हेल्प से पता कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी केस नहीं होता. इट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी डिलीवर बाय द सेल. सो अगर आपको मैक्सिमम पोटेंशियल पता करना है पर्टिकुलर सेल का तो यू कैन फाइंड आउट द हेल्प ऑफ EMF, राइट. एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमेशा लेस देन होता है मैक्सिमम वोल्टेज दैट अ पर्टिकुलर सेल कैन डिलीवर. एक पर्टिकुलर सेल कितना मैक्सिमम वोल्टेज डिलीवर कर सकता है उससे हमेशा कम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट. सो मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो EMF से हम पता कर सकते हैं, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा मैक्सिमम पोटेंशियल से वोल्टेज से हमेशा कम होता है, ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी फ्लो ऑफ करंट. ये स्टेडी फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बट ये ऐसी किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता. इट मीन्स इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेडी फ्लो ऑफ करंट इन अ सेल, ठीक है. इसकी प्रेजेंस में फ्लो बहुत स्मूथली स्टेडी फ्लो करता है, ऐसा कुछ भी केस पोटेंशियल डिफरेंस में विजिबल नहीं है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन EMF and potential difference. So in overall you can conclude that EMF is the potential difference between two electrode, two half cell. ये दो हाफ सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है या दो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो इलेक्ट्रोड्स का जब करंट फ्लो कर रहा है. ये मैक्सिमम वोल्टेज हमें डिलीवर कर सकता है, ये लेस देन मैक्सिमम डिलीवर करता है. ये मैक्सिमम कभी नहीं करता है, मैक्सिमम से कम ही करता है. और ये जो है थर्ड पॉइंट वी कैन से दैट EMF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेडी फ्लो एंड दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सच सिचुएशन. Okay, so this is all about the difference between EMF and potential difference. Okay, so students, till now we have covered the topic electrode potential, right, and we have covered the topic type of electrode potential. We have seen about the EMF, that is cell potential, and we have also compared this EMF with the potential difference, and we have also covered the topic how you can calculate the EMF of the cell, that is how you can calculate the cell potential. In both cases, when anode is showing oxidation potential and cathode is showing radiation potential, you just have to add the potential of both the half cells, and if electrode potential is given in reductive form, then you have to always minus higher minus lower. You have to use formula E higher minus E lower. So हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर दिया है. प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से पढ़िएगा और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ओके,
So take care for now and just wait for your next video.